Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، پروگرام کے آغاز میں ہم آپ کو لیے چلیں گے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے ایک تفتیشی دفتر میں. کیا حال ہے جناب آپ کا؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا ماحول آپ نے برپا کر رکھا ہے؟ ہم مختلف کیسز میں تفتیش کر رہے ہیں جی، اور ان سب کو اس لیے یہاں بلایا. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو پیچھے حنیف اینڈ کمپنی کیا کر رہے ہیں؟ سر حنیف کا بڑا وسیع تجربہ ہے سیکیورٹی کا. اچھا، یہ میری سیکیورٹی کے لیے آیا ہے یہاں. اور یہ جو نشئی ہے؟ سر میں مخبر ہوں، تم مجھے کیوں نہیں یہ سمجھتے ہو؟ اچھا، یہ جو لوگ آپ پکڑ کے لائے ہیں یہ ان کی مخبری پہ لائے ہیں؟ اور نہیں جی نہیں، ان کی اتنی حیثیت کہاں پہ. یہ ہم نے اپنی تحقیقات کے بعد ان کو پکڑا ہے. اوے، کیا نام ہے تمہارا؟ حنیف جی. میں یہ جو پہلے سوٹڈ بوٹڈ بھائی جان ہے ان سے پوچھ رہا ہوں. جمشید جی، جمشید صاحب، آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ میں بینکر ہوں جی. بینکر ہوں نہیں، تم بینکر تھے. اس ٹائم تو زیر تفتیش ہیں. تیرے تاب ہے گیا سر، تیرے تفتیش نہیں گئے. اور زیر عطا بھی ہے گیا. اب یہ نواز شریف کی محبت ہے، اسی پختنے گئے تھے اندر کھوتے ہوئے. یہ صاحب کون ہے؟ ان کی کنسٹرکشن کمپنی ہے سر. انہیں کئی 100 ارب کے ٹھیکے دیے گئے بغیر میرٹ کے. کیا مطلب بغیر میرے؟ سر پیپرا رولز ہے نا، انہیں وائلیٹ کیا گیا. اور کہہ رہے پاپرا اصول نے اسی بھی نواز شریف کی محبت پختنے گیا. اسی تو اسی محبت سے قید ہوئے. 4-5 ہی بے ہوش ہو چکے ہیں. اس وقت انہیں کس کیس میں پکڑا ہے؟ یہ جناب ابھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ان کے بڑے گھپلے ہیں. میں بتاؤں جی، او یار، یہ بھی کھڑا ہے. ان انکل جی کو ایڈوانس پیمنٹ پہ پکڑا ہے. اور تیرا بیرا گھر کو جو ایڈوانس پیمنٹ نہیں اور پارٹ پیمنٹ ہے. پارٹ پیمنٹ پہ؟ انکل جی ہمیں جھوٹ بول رہے ہیں، بات کو چھوڑ ہے. اچھا، بات کیا ہے یہی تم سے پوچھ رہے ہیں. انہوں نے نا 20 ارب روپیہ ایڈوانس مانگا تھا. تو یہ دلائے کس نے تھے پیسے اس کو؟ چاچو نے اور کس نے. اچھا تو پتا ہے کہ اسی نہیں پڑھیا انہیں پڑھیا ہے. سر یہ اس قدر کوپریٹ کر رہا ہے. سب سے اچھا آدمی یہ ہے. الحمدللہ. رات کلا جیل سون رہے، باقی سارے باہر سون رہے. اچھا، یہ جو بیچ میں کھڑا ہے ساتھ ایک اوپن شرٹ والا، پھر یہ ڈی جی تھا ایک بڑے محکمے کا. آج کل ذرا ریلیکس لک دینے کی کوشش کر رہا ہے. ریپیوٹ کیا ہے اس کی؟ مہا کرپٹ. چاچو یہ مہا کرپٹ. اچھا، یہ ڈی جی صاحب تھے کس چیز کے؟ بول کیوں نہیں رہے؟ اے ڈی جی فالسا سی جی. کیا فالسا نہیں ہوں کالے رنگ دا جدو تے نمک پائی دا. اچھا اس طرح نہیں کھائی دا وجہ ہے. یار تم واقعی افسر ہو؟ سر آپ کو پتا ہے میں ڈی جی تھا اور میں بڑی اچھی ریپیوٹ والا افسر تھا. نہیں، اچھی ریپیوٹ سے کیا مراد ہے؟ سر میں عام لوگوں سے کوآپریٹ کرتا تھا، مجھے اسی کی سزا ملی ہے. اچھا جی، ان کا کیس کتنے کا ہے؟ یہ 24 ارب روپے کا گھپلا ہے جی. تو اب تک برآمدگی کیا ہوئی؟ ایک پیسہ نہیں ہوا. اور میں تو پوچھو اندہ معاملہ کی ہے. اچھا جی، ناگی صاحب یہاں کیا کر رہے اے تے مالیاں دا کام کردا ہے جی. ہیں؟ یار مجھے ان سے پوچھنے دو. سر دراصل یہ نیکی ناگی صاحب کی وجہ سے ہوئی. اچھا، ان کے ایک عزیز کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا جس میں یہ تینوں شامل تھے. یہ تینوں؟ جی. چاچو اینا تینا دی گل ہو رہی ہوں، میں کدی فراڈ نہیں کیتا. تو آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ مینوں ایویں لے کے آئے. کس وجہ سے؟ ایویں تو نہیں نا؟ او بس منی لانڈرنگ نہیں ہوندی. منی لانڈرنگ کرتے رہو؟ میں کردا نہیں رہا، صرف نہ آیا ہوا ہے. اچھا، نام تمہارا بھی ہے؟ الحمدللہ. اچھا یہ چاچو نہ بنو، سارے چاچو اندر ہو رہے جی. ایسی گل نہیں کی چاچو ٹیڑے. تمیز کر. میں اچھا ناگی صاحب، آپ بتائیں ہوا کیا؟ سر میرے ایک رشتہ دار دا کمرشل پلاٹ آ شہر دے وچ. اچھا، ڈی سی دے دفتر دے این ساواں او جی پاکستان مانن تو پہاڑو دا انہاں دے کول ہے جی بیچاریاں کولو. اچھا. ہن اس ویلے ان دی قیمت ہو گئی ارباں روپیے. اوئے ہوئے، پھر؟ انہاں تیناں فراڈیاں نے رلتے اندے تے کرا لیا قبضہ. ان تینوں نے، میں نہیں. تسی تینوں کٹھے ہی ہوئی ہو. اچھا، بہت پرانا پلاٹ تھا، کب کا تھا؟ اے چندر گپت موریہ دے دادے نے انہاں دے بھرا نوں دتا سی. اچھا جی، کیا وجہ ہے نیب اس قدر فعال کیوں نہیں رہی پاکستان میں؟ ہمارے ہاں ایک محتاط اندازے کے مطابق 4500 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے ہر سال، جبکہ نیب کی ریکوری ہے 16.8 بلین، یعنی بمشکل 17 ارب یہ ریکور کرتے ہیں. آپ کو تو بہت زیادہ ریکوری کرنی چاہیے. اور سر اب ریکوریاں دیکھیے گا. پہلے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. کس نے باندھے تھے آپ کے ہاتھ جی؟ تھوڑے سے ابو نے باندھے ہوئے تھے، تھوڑے سے چاچو نے، اور تھوڑے سے ڈاڑی انکل نے. کہنا باہر بلا لیے، اج ہی سارے کیس مک جان گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے تم. اسے باہر ہی لے آؤ. ببلو پتر باہر آ جا. اچھا جی. تو ببلو نہیں، تو یبلو ہے. تو لے کے ببلو نو. چھٹی ہو گئی. اپنا اپنا بچاؤ کر لو، ببلو کھول گیا جی. کیا اپنی سویٹ دا مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے؟ کچھ کھانے کو ہی منگوا دو. اچھا کیا کھانا ہے تم نے بھائی؟ 2-3 مدفون ہی منگوا دو. تینوں ویکھ کے سارے جانور ویسے ہی مدفون ہو جاندے.
ਇਹ ਮਦਫੂਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? मदफून सज्जी की किस्म है। ਇਹ ਸੱਜੀ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਖੱਬੀ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। मैं बुखाड़ी भी खा जाना। अरे बुखारी ये सज्जी की सेंट्रल एशियन किस्म है। ਅੱਛਾ ਬਬਲੂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਨਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਈ तो सर वो तो तनख्वाह मिलनी है। लोगों के मसाइल हल होते रहेंगे, हमारा तो मसला कभी हल नहीं होगा। तेन मना किता ने इतने गल नहीं करनी। अब बबलू बैठा उन्हें 1 मिनट कह देना अल्हम्दुलिल्लाह अगे 3 बारी आखी फिर दे। आप बताएं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या मसला है आपका? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਤੇ हल कर लो। अच्छा जनाब ये बताइए वो जो हाई प्रोफाइल केसेस थे उनका क्या बना? ये 42 हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिनमें लातादाद पारसाओं के नाम मैं तो देख के हैरान रह गया। खुर्शीद शाह साहब भी उसमें हैं, शर्जील मेमन है और उसमें चौधरी बरादरान का नाम भी है। जी जी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, राजा परवेज अशरफ, इन सब के नाम है इसमें। और शौकत तरीन भी है। हाँ जी, शौकत तरीन भी। जहांगीर तरीन तो नहीं है ना? शुक्र है बाल बाल बचा है वो भी। फिलहाल बचे हैं, आइंदा बचते नजर नहीं आते। बदकिस्मती का आलम देखिए कि इन मेगा केसेस में 11 मरतबा नैब डेडलाइन दे चुकी है कि हम इस डेडलाइन से पहले केस निपटा देंगे। आज तक नहीं निपटाएंगे। क्यों? कहीं ना कहीं मसलत कोशी, कहीं ना कहीं कोई फ्रॉड, दगाबाजी, 2 नंबरी, जिसके बल पर हुकूमत चल रही है, बल्कि पूरा मुल्क चल रहा है, स्टेट चल रही है। वो स्टेट क्या होगी जो बददियांती पर, फ्रॉड पे, मसलत कोशी पे चल रही हो। सर ये मई 2017 के अंदर नैब ने एक लिस्ट दी सुप्रीम कोर्ट में ठीक। 179 मेगा केसेस की। ओए होए होए। सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुल गई, नैब की आज तक नहीं खुली। नहीं हुण तो नायब दी अख भी खोल गई है। और ना की बंदा बाने मैं बटेरा बना के उड़ा देने। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुआ है? हर कह नहीं रहा नैब दी अख खुल गई है। और क्या कहे? ਸਰ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਮਾ ਮੁਤਕਲਮ ਬਣਦਾ ਵਾਹਿਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨੀਵ की नहीं की मसला तेरा है? ਲੋ ਜੀ ਬਬਲੂ ਗਿਆ ਹੈ। वैसे बबलू का बड़ा कमाल है। इस मुल्क की तारीख में ये जो बेहतरी आती नजर आ रही है ना, इसमें चाहे लाशऊरी तौर पे उसका रोल जरूर है। बबलू को याद रखा जाएगा। बात ठीक है वैसे आपकी, बबलू का एक किरदार है। देखें, अगर ये कन्फेशन ना देते, हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कह के जी ये फ्लैट हमारे हैं, उसकी मिल्कियत एक्सेप्ट ना करते, आज तक बारे सबूत इन पर नहीं बल्कि खान साहब पे होता, और खान साहब के पास किसी चीज का सबूत नहीं होता। आफ्ताब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम मुझसे तलाशियां दिलवाते रहोगे, कोई काम भी लो उससे। ये तलाशी कोई छोटा काम था खान साहब? और ये तो हो गया, अब आगे बताओ क्या करना है। आगे बस आप सिर्फ तेल देखें, तेल की धार देखें। चलो बाट पिछली वाला आज चल। ऐसे क्यों भेज रहे हो? एक इंटेरोगेशन ऑफिसर आया सर नई फाइल लेकर। नई फाइल भी खुल गई। जी हाँ। अजे तो कुछ भी नहीं खुलियां, खुलन गया ते हूं जिस तरह जीजिया ते हेलमेट नहीं खुल गई चाचू। यार ये क्या कैरेक्टर है? तो ये बताओ और कौन कौन सी फाइलें हैं? चाचू मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਲਕਸਮਬਰਗ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਖੇਡੇ। क्या करे? ਖੇਡੇ तेरे वास्ते हॉक हॉगन ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ बस दुआ करो मान जाए। ਚਾਚੂ ਟੀੜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਟੀੜੇ ਨੂੰ। अच्छा खेलना क्या चाहते हो? ਜੱਸੂ ਪੰਜੂਆੜ ਕਬੂਤਰ ਡੋਲੀ। पर किसी और ਨੂੰ कह दो हाथ बड़ा भारा है इन्हें मेरा कबूतर फेंक रख देना। नहीं फिक्स एन ऑर्डर। अच्छा जी। इधर आ जाओ नीफ चाचू, इधर इधर बैठ। अच्छा मैंने चाचू नहीं कहना मैं आज बड़ी नौकरी करनी है। चलो नीफ चाचू। यीशु पंजवार कबूतर डोली, यीशु मैं जित गया। तू जित गया? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात ने मरवाया साल सारे केस मेरे ते पा दियो। कोई और गेम ना खेल ली बबलू? मैनू यही गेम आंदी खेडनी। ए मैनू नहीं आंदी ना। मैं नहीं आंदी खेडनी, नहीं खेडनी तो फिर जाओ किसी और को जाके पूछो सारा कुछ। वाह 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 आओ ना इतने अल्लाह माफ कर लुआरा जेड़ा ते हाथ से होता। अच्छा पुत्र 10 के मारिया कर यार इन्हें चंगा मेरा हाथ ट्रेन थले दे दे। इस गेम तो बाद लोग तेनों अनीफ टुंडा कहेंगे। क्यों? अब क्या हुआ है? उन्हें बखाई खब्बी मारी सज्जी है। क्यों भाई? ये ना बड़ा तरीका है, जैसे अबू ने शहबाज चाचू को दिखाई खबी है, मारनी सजी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बताऊंगा 45 दिन बाद। इधर गल्ला ही करो बबलू पुत्र, दुनिया च होर गेमां भी है ने। तो चिड़ी उड़िया कां उड़िया खेड लीए। ओदे च भी कोटी पेंडी आई आ। डैडी वो गेम तेनू याद है? बबलू बेटा आंटी नीब ना बुल फाइटिंग खेड। मैंने चुक के शेखपुरे सुट देना।
आफ्ताब, अब वक्त आ गया है, जब तक एक दिन में 500-600 गिरफ्तारियां नहीं होंगी ये मुल्क ठीक नहीं होगा। तो होनी चाहिए, हम तो कहते हैं जनाब। जिस तरह 1982 में सिंगापुर में बड़ा मशहूर लोकपाल बिल पास हुआ था, उस बिल के तहत एक दिन में 142 करप्ट मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, इन सबको पकड़ा गया था। वो दिन और आज का दिन, वहां पर करप्शन अब ढूंढने से भी नहीं मिलती। वहां पर लिटरेसी रेट 92% हो चुका है। और गौर तलब बात यह है कि सिंगापुर की एक्सपोर्ट्स हमसे 25 गुना ज्यादा है और आबादी गुजरावाला से भी कम। वहां का 90% पैसा वाइट है और यहां पे मेरा ख्याल है 95% ब्लैक है। तो टैक्स से इतना पैसा इकट्ठा करते हैं वो? टैक्स नाम का नहीं है वहां पे। जिस तरह दुबई है ना, ड्यूटी फ्री है, एक तरह से टैक्स फ्री है। वहां पर जोन्स हैं। जाहिर है जब आपने करप्शन का पैसा इकट्ठा करके इकोनॉमी में फेंक दिया तो आपकी इकोनॉमी फ्लरिश करेगी। इकोनॉमी तो आपने फ्लड कर दी। हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, जिसकी वजह से हमारे आम आदमी के हालात बेहतर हो सकते ही नहीं है, कि जितना पैसा इस वक्त गर्दिश कर रहा है उसका 95% तो ब्लैक मनी है, करप्ट लोगों का पैसा है। वो अपना पैसा धड़ाधड़ बाहर भेजते चले जा रहे हैं। पैसे का साइज, उसका हजम श्रिंक होता चला जा रहा है और खाने वाले नफूस उससे कई गुना ज्यादा है। आबादी में बेपनाह इजाफा हो रहा है। तो ये जो डिसइक्विलिब्रियम है, ये है सारे फसाद की जड़। वो जड़ से पकड़ना पड़ेगा। खान साहब, मैं आपसे एग्री करता हूं कि एक दिन में 500-600 नहीं, मैं समझता हूं 5000 गिरफ्तारियां होनी चाहिए, और महज गिरफ्तारियां नहीं जो पहले होती रही हैं, इस तरह की हिसाब किताब हो। आफ्ताब, मैं तो खान साहब आराम ना बैठो, साड़ी गेम पकी हुई है। पुत्र गेम तेरी भखी हुई, मेरा तो सिर्फ हाथ भखिया है। अच्छा बबलू, हाँ जी, ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਾਚੂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਛੋਟਲਾ ਮੰਗਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਐਡੀ ਦੇ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਆ ਓਏ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਬਲੂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਪੀਣੀਆਂ ਨੇ। मैं एक नहीं, मैं 2-3 कड़ेट पीने ही। ज्यादा ना पिए गला खराब हो जाता है। हाँ वो तो ठीक है ना। वो एक आधी बोतल सानू भी दे दे। वो अपनी शक्ल देखी है? प्यो दा पुत्र आके खेड ਇਹਦੇ ਨਾਲ। जी बबलू, कुछ और चाहिए आपको? यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਪੰਜੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? चाचू ए वो टेस्ट नहीं की जेडी बाहर हैगी है ना। जाहिर है बाहर तो प्योर और बड़ी लाजवाब, बड़ी फ्रेश होती होगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੈ ਜਾਏ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬੋਤਲਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਲੈ ਆਈ। ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਈਏ। नहीं इतने वाड़ी दे हो। यार मैं नहीं खेलना, बिल्कुल नहीं। वाड़ी दे, वाड़ी दे। हेलो, नवी गेम शुरू हो गई। अपने पुत्र मैं सीरियस हाँ, यीशु पंजू छड़ कोई और गेम खेडिए। कोई और खेड लेने। शुक्र है। तुसी ना घोड़ा बनो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ। ये तो बिल्कुल फिर गेम मुकान वाली गल हुई ना। तू खेडो ना यार, होंडी नहीं बोलनी। नहीं पुत्र, मैं नहीं घोड़ा बनना। सर मेरी जान छुड़ाओ। देखो हनीफ, जिस तरह की कॉपरेशन हमें मिल रही है ना, हमें इसकी हर ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। बन घोड़ा। लो सर, मैं तुम्हें गल दसा जी, ये पनामा सिर्फ मेरे एहतसाब लिए शुरू हुआ। बबलू जी, उत्तर 10 के बैठी। अच्छा तू सदा दौड़ दौड़ घोड़िया। वो बोल ही नहीं रहा। हेलो घोड़िया, घोड़िया। अच्छा ये फ्रॉड लगा रहा है, ये बेहोश नहीं हुआ। बन घोड़ा। और डिगे घोड़े तो बहना है। कुछ दिनों बाद हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कुछ दिनों रात आज का गाना हमने फिल्म जिद्दी से लिया है। मास्टर अब्दुल्ला की निहायत शानदार कंपोजिशन, लिरिक्स हैं हसीन कादरी के, गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज।
मैं तेरे हाण दी, मैं तेरे हाण दी, दुनिया जान दी, तू है मेरा गहना, तेरे नाल 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 वे मैं रहना। सुपर सुपर। वेलकम बैक जी। सर, आप नए वजीर आजम की तकरीर और उनके किए गए वादों के बारे में क्या कहते हैं? मैं जाती तौर पे इसे एक फजूल तकरीर समझता हूँ, एक बेकार तकरीर थी। हिज मास्टर्स वॉइस से ज्यादा इसकी कोई कैप्शन हो ही नहीं सकती। एक नुकसान हुआ है मुझे और एक नुकसान हुआ है अब्बासी साहब को, तो ये कि मैं अब्बासी साहब को एक इंतहाई डिसेंट आदमी समझता। इसका ये मतलब नहीं कि उनकी तकरीर से बड़ी नरमी एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, को गैर जरूरी यतीमी एक्सपेक्ट कर रहा था। तल्ख लहजा भी अडॉप्ट करने का एक तरीका होता है। मैं उस स्क्रिप्ट के बहुत खिलाफ हूं। यानी वो जब LNG का तस्करा आया तो आगे से वो कहने लगे कि एक एक चीज का हिसाब दूंगा, जब चाहे आ जाना, दूंगा बेटे बेटे दूंगा। अब एक अपने पार्लियामेंटेरियन कोलीग को आप इस तरह नहीं कहते। आप किसी थड़े पे तो नहीं ना बैठे, किसी टी स्टॉल पे तो नहीं बैठे। इसलिए उन्होंने जो बातें की हैं कोई ऐसी खास चीज उसमें नजर नहीं आई सिवाय इसके कि अग्रेशन, बास जगहों पे गैर जरूरी अग्रेशन। लग ये रहा था कि जैसे ये साहब ये बातें करना नहीं चाहते, लेकिन फीड इस तरह की गई है, उन्हें प्रोग्राम इस तरह से किया गया है कि वो मजबूरन वो कुछ कह रहे हैं जो उनके साथ चल नहीं रही, उनकी शख्सियत के साथ जा नहीं रही। ये नहीं कि बज़ाहिर डिसेंट आदमी, बिल्कुल ऐसे है जैसे चौधरी निसार अली खान आम गुफ्तगू में जुगतें करनी शुरू कर दे। मतलब अक्ल तस्लीम नहीं करेगी कि ये चौधरी निसार है, वो एक संजीदा आदमी, बहुत सीरियस। तो अब्बासी साहब को मैंने जितनी मर्तबा भी सुना है हाउस में तो वो और तरह से बोलते रहे बेचारे। उस वक्त तो एक बहुत बड़े बरगद के साए तले थे वो, उनकी मजाल ही नहीं होती थी। अब भी वो यूं ही लग रहा था जैसे बरगद अब भी मौजूद है, बस उसके साए तले पड़ा एक छोटा सा गमला था। वो अपनी जाती हैसियत में वहां पे नहीं खड़े। ये तो था मेरा इंप्रेशन उनकी तकरीर से मुतालिक। जी जनाब। सर, आपके ख्याल में क्या मुल्की सियासत तसादम की तरफ जाती नजर आ रही है? अब इस तकरीर के बाद अभी मजीद पूछने की गुंजाइश है क्या? तसादम की तरफ जाती नजर नहीं आ रही, तसादम शुरू हो चुका है। वो बिगल जिसे नहीं बजना चाहिए था वो बच चुका है। हम तो बहुत लेट होंगे अगर बताएंगे कि जनाब GT रोड से आने का प्लान है शहनशाह मुअज्जम का, और हर जगह पर डेप्यूटी कमिश्नर्स को, DCOs को असाइनमेंट्स दी जा चुकी हैं। ये सारी बातें सुबह शाम चैनल्स पे हो रही हैं। तसादम का माहौल बन रहा है। तसादम से हम नहीं घबरा रहे क्योंकि हमने को पहली दफा तसादम नहीं देखा। हर दौर में तसादम हुआ है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, साउथ कोरिया में भी होता है, जापान में होता है, इटली में होता है, मॉस्को में, यूक्रेन में जुतम पेजार होते हैं लोग आपस में हाउस के अंदर। ये तो फिर सड़कों की बात है। लेकिन जो परेशान कुन बात है, जिसके ऊपर शदीद तशवीश है, वो ये कि जब तसादम का माहौल क्रिएट होगा, जो कि एक सियासी तलाजमा है इस सिचुएशन का, ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं, इससे फायदा उठाएंगे वो अनासर जो आपकी ईंट से ईंट बजाना चाहते हैं। लोगों की ख्वाहिश महूम चेक करें। काश कोई ऐसा मीटर होता जो उनकी ख्वाहिश और डिजायर चेक कर सकता। आपको महसूस होता है कि आपके दुश्मन तो वो शाम एक ही दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी जाए। यानी एक होता तबाह कर देना, एक होता कलाकमा कर देना। आपके बारे में लोग इस तरह के जज्बात रखते हैं और वो बड़े बावसीला हैं। फिर वो बड़ा महसूस करते हैं कि उनकी बहुत सारी शिकस्त रेख्त में हमारा हाथ है। मतलब अगर अफगानिस्तान में आपको जूते पड़ रहे हैं तो आप सारा इल्जाम हम पे डाल रहे हैं। आपको मकबूजा कश्मीर में हजीमत का सामना करना पड़ता है, आप वो मलबा उठाकर भी हमारे सर पे डाल देते हैं। फिर ऐसे ऐसे हमसाए भी आपके बैठे हैं जिनके अपने अंदरूनी मसाइल बेशुमार हैं, उनकी अपनी बॉर्डर सिचुएशन बड़ी वॉलेटाइल है, वो इसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान को करार देते हैं। तो इसलिए मां सिवाय एक मुल्क के जो अल्लाह ताला की एक मेहरबानी है, वरना पाकिस्तान इस वक्त घिरा हुआ है दुश्मनों में। पाकिस्तान पहले भी इसी तरह के मामलात का शिकार रहा है, लेकिन आप देखिए कि हिस्टोरिकली अफगानिस्तान की तरफ से आपको अच्छी खबरें, ठंडी और पुरलुत्फ हवाएं आया करती थी। ईरान आपका टाइम टेस्टेड फ्रेंड, RCD, और उससे भी बहुत पहले बहुत दोस्त था। सो मच सो जब सिकंदर ने यलगार की ईरान के ऊपर और फिर बाद में हिंदुस्तान पे भी चढ़ दौड़ा था, तो हिंदुस्तानियों की अक्सरियत ने दारा को सपोर्ट किया था।
राजा पोरस के जाती दस्ते दारा की हिफाजत के लिए ईरान गए हुए थे सिकंदर के साथ जब उसका मामला था। तो हमारा ट्रेडिशनली एक बड़ा गहरा ताल्लुक, एक बड़ा साथ था, लेकिन हमारे हुक्मरानों की नाकबतंदेशी, खुदगर्जी और खलंडरापन, उसने हमें ये दिन दिखाए कि हम इस कदर परेशान कुन हालात का शिकार है। खुदा न खास्ता इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त एक सिटिंग डक बन के बैठा हुआ है और हर तरफ दुश्मन जो है वो नजरें जरूर गाड़े बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतना ताकतवर बैरूनी तौर पे पहले कभी नहीं था जितना आज है। अगर ना होता, इस बात का लिटमस टेस्ट ये है, अगर पाकिस्तान इतना मजबूत ना होता, मैं बैरूनी तौर पे बात कर रहा हूं, तो आज से 4-5 साल पहले ही आपको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया जा सकता। मतलब है आपके दुश्मनों के पास क्या चीज है जो नहीं है। हालात भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वसाइल उनके पास आपसे बहुत ज्यादा, आप अकेले हैं, मां सिवाय चाइना के आपके साथ कोई दोस्ती का ख्वाह ही नहीं है। लोग आपके न्यूक्लियर रोल बैक की बातें करते हैं, लोग आपसे गवादर छीनना चाहते थे, देवसाई प्लेन लेना चाहते हैं। तो इनमें से कौन सा काम है जो वो करवाने में कामयाब हुए? सब कुछ जूं का तू है। और हमारे कामों में अल्लाह के फजलो करम से निखार आ रहा है। हम आज JF-17 थंडर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं भाई, हम अल खालिद खुद बना रहे हैं। हमारे जैसी G3 राइफल तुम्हारा बाप भी नहीं बना सकता। मैं जब ये बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि कॉस्ट इफेक्टिव हमारा मशाक तैयारा, उसी का सानी कोई नहीं है। मतलब हम हर चीज में बहुत आगे जा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। हमें अगर मार पड़ रही है तो इंटरनली पड़ रही है, ट्रेड में पड़ रही है, गलत पॉलिसीज की वजह से पड़ रही है। हमारी हर पॉलिसी बुरी तरह पिटी है। हमारी एक्सपोर्ट्स $4 बिलियन नीचे आई हैं इस हुकूमत की वजह से, इसकी मिसमैनेजमेंट और इल प्लानिंग की वजह से। हमारे कर्जों में $35 अरब का इजाफा हुआ है गुज़श्ता 4 सालों में। ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस। शर्म करो कुछ। मतलब क्या समझते हो कि हम सारे के सारे, ठीक है गोबियों की अक्सरियत है यहाँ पर, लेकिन सब गोबियां नहीं है। और तुम अब भी नहीं समझ रहे, अब भी तुम ये समझ रहे हो कि सिर्फ नवाज शरीफ को हदफ बनाया जा रहा था। अगर नवाज शरीफ हदफ होता तो अब तक तो ये सिलसिला खत्म हो चुका होता। आपको अंदाजा ही नहीं कि आगे जाके क्या होने वाला है। तुम जरा 4-5 हफ्ते गुजर लेने दो, बल्कि मैं ज्यादा बता रहा हूं, तमाशा देखना। जहां तक तसादम का ताल्लुक है, तसादम की तरफ मामला जा रहा है और इस तसादम की दाग बेल खुद नवाज शरीफ साहब ने डाली। नवाज शरीफ साहब अगर उस वक्त नविश्ता दीवार पढ़ लेते जब नाम आ रहा था पैनामा केस में, तो हालात बेहतर हो सकते थे। इज्जत एहतराम के साथ साइड पे हो जाते। कहते जब तक मैं क्लियर नहीं होता, क्लीन चिट नहीं मिलती, मैं इस मसनदे इक्तदार से दूर रहूंगा। आपकी ये जो ग्रिलिंग होती रही है सुबह शाम 1.5 साल, ये भी ना होती, तसादम की नौबत भी ना आती, हल्का फुल्का एहतसाब भी होता रहता, हल्की फुल्की सियासत, जमहूरियत और बिजनेस भी आप करते रहते। आपको किसने रोकना था बिजनेस? अगर हम आज तक 30 साल तक आपका बिजनेस नहीं रुकवा सके तो बाबा हम अब भी ना रुकवाते। हमने तो चीखना चिल्लाना शुरू किया आपकी पॉलिसियों के जो नताइज सामने आने लगे उस पर। मतलब किस कदर अलमनाक बात है कि $35 अरब का कर्जा आपने 4 सालों में चढ़ा दिया, बजाय इसके कि आप हमारी एक्सपोर्ट्स में कई गुना इजाफा करते, आप कमी ले आए। हम इस पर रोए हैं, इस पर चिल्लाए हैं। अस्पतालों की सूरत हाल देखें, थानों की कैफियत देखें, आम पब्लिक, किसानों के हालात देखें। किसान इस वक्त पता क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ को हमारी आहें ले डूबी हैं। तो इसलिए जनाब बात तसादुम की तरफ जा रही है। मैं तो कोट करूंगा चौधरी निसार को कि उन्होंने जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बड़ी पते की बात कही थी। अगर अल्लाह ताला आपको वो चश्मे बीना दे देता इसको समझने के लिए, इसको देखने के लिए कि हालत क्या है और सूरत हाल जिसकी निशानदेही की, उन्होंने कहा मियां साहब आप मुकदमा जीतें या हारें, आपने नर्म खोई से काम लेना है, तसादम की तरफ मत जाइएगा। तसादम मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है और आपके लिए। काश आपने ये गुफ्तगू सुनी होती। रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि मियां चन्नू में सहाफी बनकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाला गिरोह गिरफ्तार, कब्जे से प्रेस कार्ड बरामद। अरे ये वबा बहुत ही फैल चुकी। जी जी, मीडिया जिस तरह एक्सपैंड कर रहा है उस तरह ये वबा और इसके वायरस भी एक्सपैंड करेंगे। हर शहर में
ہر فیلڈ میں آپ کو ایسے صحافی نظر آئیں گے، اور خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں. کہ بڑے شہروں میں تو اب پہچان ہوتی ہے نا، بندہ فون کر کے چیک کر لیتا ہے، اچھا جی یہ کس چینل کا کس اخبار کا بندہ ہے، پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگر آپ کا روزنامہ مہک ہو جی، روزنامہ چہکار، روزنامہ گٹک، تو بندہ کس سے پوچھے؟ پھر فرضی قسم کے انہوں نے بنا رکھے ہوتے ہیں کارڈز. یہ وبا بڑی آسانی سے کنٹرول ہو سکتی تھی، لیکن گورنمنٹ نے چونکہ درخورے اتنا نہیں سمجھا، اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کی ترویج میں حکومت کا بڑا ہاتھ ہے. سر اخبار کا NOC لینا اس قدر آسان ہے کہ آپ صرف BA کی ڈگری دیں اور شناختی کارڈ کی کاپی، آپ کو NOC مل جائے گا اور جس کو مرضی بلیک میل کریں. میرے ساتھ واقعی بیت چکا ہے. میں جن دنوں شادمان رہا کرتا تھا GOR3 میں، کہ قریب ہی ایک ریسٹورینٹ ہے، جاوید بھائی اس کے اونر تھے. مجھے ایک دفعہ انہوں نے فون کیا تو مجھے کہتے ہیں کہ ایک صاحب آتے ہیں، وہ 2-2 4-4 دوستوں کو لے آتے ہیں، بڑے مزے سے کھانا کھاتے ہیں. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کسی صحافی کو کھانا کے، لیکن ان نون سا کوئی چینل بتاتے ہیں، ان نون سا کوئی اخبار ہے، اور چھپے ہوئے کالمز 1-2 انہوں نے اپنے دکھائے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا صحافی وہ اپنی صحافت کو مس یوٹیلائز کرتے ہوئے مفت کھانا کھائے، یا کسی ریڑھی سے فروٹ لے لے، کسی دکان سے گوشت لے لے؟ میں نے اسے کہا اس کو پکڑوا دو. میں پھر پکڑوایا اسے، اور میں نے اس پوری ایکٹیویٹی کو فون پہ مانیٹر کیا تھا. سر آپ تو ریسٹورنٹ کی بات کر رہے ہیں، میں نے تو ایک ایسے صحافی کو دیکھا جو گنے کی ریڑھی سے رو پینے کے لیے روزانہ پریس کارڈ دکھاتا تھا. سر صحافی بہت غریب ہوتے ہیں. اس کا تعلق غربت سے نہیں ہے، یہ بس اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہوتی. کئی جینون صحافی، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں 2 نمبریوں کی، جینون صحافی ایسے جو اپنے گھروں میں جوا کروایا کرتے تھے، ڈین بنائی ہوئی تھی انہوں نے گیملنگ کی، ایک طرح کا کسینو وہ رن کیا کرتے تھے. پھر سمگلرز، ان کی سرپرستی، قبضہ گروپوں کی سرپرستی، یہ جو بھٹیاں ہیں شراب کشید کرنے والی، ان کی سرپرستی، ایسے سینماز جو اس طرح کی فلمیں چلاتے تھے، انہیں بھی صحافی بہت پروٹیکشن دیا کرتے تھے. پھر سب سے دلچسپ بات، پولیس کے اندر جو کرائمز ہو رہے ہیں وہ صحافت کی پروٹیکشن میں، اس کی چھتر چھایا میں ہوتے ہیں. سر ہم تو جینون صحافی ہیں، ہمارے پر الزام ہے یہ. تم صحافی ہو؟ جی میرا نام ماجد ملی. ماجد ملی؟ ہاں جی. تسی میاں چنو جا کسی نے پوچھ لو کہ ماجد ملی دی دکان کتنے گی. میرا اپنا کپڑے دا کاروبار بھی ہے جناب. اچھا یہ بھی ایک عجیب چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ چھوٹے شہروں میں جتنے صحافی ہیں، اخباری نمائندے ہیں، ان میں اکثریت ان کی ہے جن کے کاروبار کچھ اور ہے. وہ بائی پروفیشن صحافی نہیں ہے، بائی ڈیفالٹ صحافی ہیں. وہ پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت صحافت کرتے ہیں. اور ایک بہت بڑی تعداد کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یہ چھوٹے شہروں کے نام نہاد صحافی، انہیں تنخواہیں بھی نہیں دیتے ان کے چینلز، ان کی اخباریں، بلکہ الٹا ان سے پیسے مانگتے ہیں. میں 1-2 بہت سینئر انچارج نمائندگان کو جانتا ہوں، بہت بڑے چینلوں میں ہوا کرتے تھے. وہ اس وقت میری بات سن رہے ہوں گے اور شرم سے ڈوب مرے. مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں ان کا نام نہیں لے سکتا. وہ کیا کیا کرتے تھے؟ چھوٹے شہروں کے نمائندگان باجماعت ہمیں بتایا کرتے تھے جی ہم اتنی منتھلی پیش کرتے ہیں انہیں، اور یہ انہیں پروٹیکشن دیا کرتے تھے. ہم تو بڑی صاف ستھری ثابت کر رہے ہیں جناب. یہ تمہارے سر پہ کیا ہوا ہے؟ یہ جی کٹے ہے انہوں نے. کس نے مارا تمہیں؟ سر ہے بی بی نہیں بیٹھی. اچھا یہ تو ملازمہ نے ماریا ہے. آپ کا کیا کام ہے جی؟ میرا جی بہت بڑا پارلر ہے جی میاں چنو میں ماشاءاللہ سے. اچھا. یہ جو بدتمیز بھائی ہے نا، یہ ہر دوسرے دن آ جاتا تھا، فیورے لیتا تھا ہم سے. سر پتا ہے تو آج کل بیوٹی پارلر کی ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے بے شرم انسان، کام تم سے ہوتا نہیں اور ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے ہو ہیں. سر الزام لا رہی تھی میری دکان تے کوئی آؤ تو صحیح. میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری دکان پہ اور تم پہ بھی. اچھا تھوڑی مہربانی، میرا ایسا بولنا، میرا اتنے اپنا چینل بھی ہے. کون سا چینل ہے تمہارا؟ سر میں بتاؤں آپ کو، پہلے تو بتائیں آپ ہیں کون؟ میں وہاں کی جی ایک سیاسی شخصیت ہوں، نور محمد ڈہا نام. یہ کیبل چینل ہوتا ہے نا جی، کیبل چینل جو فضول ڈرامے فلمیں دکھاتے ہیں، ان کا نمائندہ ہی ہے. سر یہ تینوں فراڈی ہیں. آپ اپنا تعارف کروائیں. میری ٹریول ایجنسی ہے سر. اچھا جی. یہ تینوں آ کے مجھے بلیک میل کرتے. سر 3 سال تو انہیں کھولی ہوئی ہے جی. اگر ایک بھتیجا میرا باہر بھیج دے تو کی جانا ہے؟ تمہارا بھتیجا کیوں باہر بھیج دے؟ خاکان عباسی ہو تم؟ میں تم دس چکا، میرا ذاتی چینل ہے. اتو کنے پیسے لیندے ہو؟ کیا مطلب؟ میں چاہتا کہ تہاڈا یہ شو میرے چینل تے آ جاوے، کیبل چینل پہ. ہاں جی. اور تسی کرنا جانگلی چ ہو. اچھا یہ کون ہے یہ حضرت؟ میرا نام جی ایوب بھٹی ہے. یہ ساڈے تے الزام لاندے نے جی، اسی تے بڑی صاف ستھری صحافت کرتے ہیں جی. فروٹ کتوں لیندے ہو؟ اور کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ میری فروٹ دی دکان بھی میاں چنو ہے. اچھا خاصا بزنس ہے اور پھر بلیک میلنگ کرتے ہو؟ اور سر بلیک میلنگ نہ کری تے اچھا خاصا بزنس نہیں رہندا. بلیک میلنگ کیوں کرنی پڑتی؟ پولیس نے کون روکدا ہے؟ صحافت. ٹیکس والے کون روکدا ہے؟ صحافت. بلدی والے کون روکدا ہے؟ صحافت. صحافیاں کون روکدا ہے؟ صحافت. اچھا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس خاتون نے سٹینڈ لیا اور بلیک میلر کو
सबक सिखाया। हुआ क्या था? ये हर दूसरे तीसरे दिन आ जाते थे, पूछते थे आपके पास मॉडलें कितनी आती हैं, अच्छा। आप टैक्सी कितना पे करते हैं। ओए होए होए। एक दिन फिर मेरे मुलाजिम ने इनके एक एक सवाल का जवाब दिया चतरौल से। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵੇ ये जो भाई बैठा हुआ ना बतखा था, नहीं बतखा तो नहीं बतखा तुम्हें कह रही है? ये इनके गैंग का रिंग लीडर है। अरे अस्सी बड़े इज्जतदार लोग हैं, मेरा बरस का काम है। मतलब क्या आइस फैक्ट्री है? नहीं जी ये तो चौंक च फटा है। 250 पेपर रोजाना विकता है मियां चन्नू विच मेरी अखबार और सर मैं टी चौक च खड़ो के बेचना। अच्छा हॉकर हो? अच्छा हॉकर भी है कालम निगार भी है मेरे टीवी दा एंकर भी है मैं तो प्रोग्राम देखे है सर। अच्छा प्लस्तर प्रोग्राम क्या है? प्लस्तर। आफ्ताब ऐसे ही सहाफी जो हैं ये सहाफत के मुअज़्ज़ज़ पेशे को बदनाम कर रहे हैं। इस तरह का एक सहाफी उकाड़ा में भी है। किस तरह का? ये जो बतखा नहीं बैठा हुआ मैंने दसो मैं वाकया बतखा तो नहीं लग जैसे जावेद साहब बड़े सॉफ्ट आदमी, ये गाल भी कर देते बड़े राउंड ना कर देते। तमीज नहीं तुम्हें कमीने। अच्छा जी मेरे अखबार की कॉलम लिख सो मेरे अखबार का नाम है जी रोजनामा जरूरत होना चाहिए रोजनामा जरूरतमंद। अरे वैसे आज तक जिन्ने भी खिलाफ लिखे है ना उन्हें सानू बड़ी फैंटी लाई। हर वारी मार इनू पैंदी है सानू कहते तुम पीछे हो जाओ। झूठ बोल रहा है, इसको भी बड़ी मार पड़ी है इस दफा। किसको? बतखे को। ए भाई जी मैंने जेल भेज दियो मेरे प्यो दादे दी तौबा ए ना तब्दील ना कर माजिद मल्ली ना है मेरा माजिद बतखा मैं कदों कहा तुम। अच्छा तुम्हारे जख्म के निशान क्यों नहीं? असल तो मैनू मारे उन्होंने कुछ सट्टा जिसे गिद्दड़ कुट कहते हैं। सही नहीं करी थी उन्हें पहले बतखा विच गिद्दड़ पा लिया तुसी नहीं गिद्दड़ कुट इसी को कहते हैं। उन्होंने गिद्दड़ समझ के कूटे है। हमारे खिलाफ गलत खबरें लगाता था ये। और सीधी गल ऐसी कुछ कीता है हो जा सन पुलिस के हवाले करे। हाँ जी आपने पुलिस को क्यों नहीं दिया केस? 7 दफा पुलिस को बताया है, एक कांस्टेबल है जिसका बनाई है। क्यों भाई तुम कांस्टेबल के साले हो? बदतमीजी च गल आंदी है तुम साले हो। नहीं वैसे पूछ रहा हूँ। अरे मैं साला नहीं मेरा बहनोई हो। ये सेंट्रल है पुराना पेचकस है। ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਤਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਫੀ ਹੈ ਸਰ कहता तो है। ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਮਾਜਿਦ ਮੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। क्यों ये हमें क्या मुसीबत पड़ी है? असल च टांगे वाला भी इन्हें बहनोई है सर। मियां चन्नू की जो मशहूर चीजें उनमें एक तो है बर्फी और एक है खुद मियां चुन्नू का कैरेक्टर। इनके नाम पर ये शहर है। मियां चुन्नू डकैत होते थे बहुत बड़े, फिर उसके बाद उन्हें हिदायत मिल गई और बहुत बड़े बुजुर्ग हो गए। ਉੱਥੇ ਬਰਫੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਬਰਫੀ ਉੱਥੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੀ ਗਿਓ ਜੋੜੀ ਕਿਹਨੇ ਦੀ ਲਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਸਹਾਫਤ ਐਸਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਸਾਫੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਹਾਫਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਫਤ ਤੇ ਆਂਚ ਆਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਐਸ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ। अच्छा जी हम साडा करना की है? मेरा मशवरा है इन तीनों अहबाब से जिन्हें छेड़ा है तंग किया तुम लोगों ने, इन्हें पुलिस के हवाले करें, सजा करवाएं इन्हें और ये कम से कम 4-4, 5-5 साल अंदर रहकर आए, फिर इनकी होश ठिकाने आएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि इनको सरेआम कोड़े मारे जाएं। चलो कोड़े नु मारने वाले छांटे उस तरह से क्यों बिगाड़े हैं? ये लोग सहाफत के पेशे को बदनाम कर रहे हैं, इनकी सजा मौत होनी चाहिए और इसे मेरा मशवरा नहीं वसीयत समझा जाए। इन्हें सजा दें जो स्टालिन दिया करता था टैक्स चोरों को। ना यार इस कदर एक्सट्रीम पे जाने की क्या जरूरत है? उनको वक्त काटे ना सर। स्टालिन की करता सी वो एक टांग एक ट्रैक्टर के साथ बांधी जाती थी, दूसरी दूसरे ट्रैक्टर के साथ और यूं करके ट्रैक्टर चला दिए जाते थे। तो सिंगल बोर्ड के बच्चे मेरे ख्याल तुम सजा महसूस कर गए हो। उनके ट्रैक्टर नजर आने लग गए। सर स्टालिन जेड़ा है किसी सर्कस का सदर सी क्यों जी एटमा करता है। अब देखो ना की गल है एक लात इधर बननी हुई है एक इधर बननी हुई है। इस बदतमीज को पूछने वाला नहीं अगले दे जो कपड़े पाट जान। ऐसे मामले में कोलैटरल डैमेज तो होता है। फिर मेरा दिल चाहता है कि तुम जैसों को सुन मेरी हूं तू स्टालिन नाल गया ना किसी कुल्फी दे बच्चे तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।